In this example, we discuss on method 1 of gearbox. Now first of all, example number 1. A multi-speed gearbox is to be designed for a small size general purpose machine tool for spindle speeds varying between 56 rpm to 1000 rpm if the recommended geometric progression ratio is as R4 series. Now done. First draw the candidate structure diagram for machine tool gearbox, and second select the optimum structure diagram. If the gearbox is to be driven by 720 rpm 3-phase AC motor through a belt drive, determine the ratio of belt pulley diameter. Now first of all, we write down the given data. So here in gearbox example, two speed is given. One is minimum speed, which is 56 rpm, and other is maximum speed, which is 1000 rpm. So first of all, we write down minimum speed is n minimum is equal to 56 rpm and maximum speed n maximum is equal to 1000 rpm. Then recommended geometric progression ratio is R4 series. So we write down R4 series here. Now this we are to find out. Now then gearbox is to be driven by 720 rpm 3-phase AC motor. So we write down electric motor speed, which is 720 rpm. Now in last we find out the ratio of belt pulley diameter. Now फर्स्ट ऑफ ऑल गियरबॉक्स में कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम लोग फॉलो करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द रेंज रेशियो, मीन्स वी फाइंड आउट द रेंज रेशियो, एंड इक्वेशन ऑफ रेंज रेशियो इज एन मैक्सिमम डिवाइडेड बाय एन मिनिमम. सो हियर मैक्सिमम speed is 1000 rpm and minimum speed is 56 rpm. So we find out Rn is equal to 17.857. Then we find out the geometric progression ratio, and equation is phi. Now here 10 raised to 1 by 4 series. In geometric progression ratio we follow some standard series. So preferred series. So we say that 10 raised to 1 by 4. Here R series is given, so we write down 10 raised to 1 by 4. Now if say R8 series is given, then we write down 10 raised to 1 by 8. Now after the calculation, we say that phi is 1.778. Now next step is speed steps. Now formula for speed step is Z is equal to log 10 Rn phi divided by log 10 phi. Here base of log is 10. Now put the value of Rn and phi. Here we find out Rn and phi. So simply put this value. So we find out Z is equal to 6. Speed steps Z is equal to 6. Now in next we draw the table. Table is speed steps and speed. Now here we put Z value, means 1 2 3 4 5 6. If Z is equal to 8, then we write down 1 2 3 4 5 6 7 8. Now here speed n1 for 1 n1 is given by n minimum, which is 56 rpm. So we simply write 56 here. Now n2 is found by n minimum into phi. Now n minimum is equal to 56 and phi is equal to your 1.778. Now n3 is found by n minimum into phi square. So we get 177. Similar for n4, n5, n6.
यहाँ पे क्या होगा, n1 आप लोग का n मिनिमम है, उसके बाद n2 फाइंड करना है तो यहाँ पे कम होगा, n3 फाइंड करना है तो n मिनिमम इंटू 5 स्क्वायर, मतलब 3 है तो 2 होगा, 4 है तो 3 होगा, 5 है तो 4 होगा, 6 है तो 5 होगा। ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज number of stages. Now number of stages is given by capital N is equal to log 10 Z divided by log 10 P. Now here we have two value for P. One is P is equal to 2 and other is P is equal to 3. So we put here P is equal to 2 and P is equal to 3. In last step we find out Z is equal to 6. So we put log 10 Z divided by log 10 2. Here we put P is equal to 2. Similarly, log 10 6 divided by log 10 3. So we get this two value. Now these two values are non-integer, means points में आ रही है वैल्यू, तो हम लोग वो वैल्यू कंसिडर नहीं कर सकते नंबर ऑफ स्टेजेस के लिए। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अलग कोई इक्वेशन यूज करेंगे जिससे हम लोग फाइंड कर सके नंबर ऑफ स्टेजेस को। नंबर ऑफ स्टेजेस आर ऑलवेज इन इंटीजर वैल्यू। सो वी से दैट z इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 2 रेज टू n1 इंटू 3 रेज टू n2। Here we say that z is equal to 6. So we say that simple 2 into 3. Now I put n1 here and n2 here. Now I set RHS is equal to LHS. So 2 raised to 1, 3 raised to 1 मीन्स n1 मैंने 1 लिया है और n2 1 लिया है, तो ही तो 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ओके, तो हियर 1 वी से दैट n1 इज इक्वल टू 1 एंड n2 इज इक्वल टू 1। सो नंबर ऑफ स्टेजेस का फॉर्मूला है n1 प्लस n2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो ओके कि नंबर ऑफ स्टेजेस का फॉर्मूला है n इज इक्वल टू n1 प्लस n2, मतलब मुझे n1 और n2 की वैल्यू फाइंड करना है। हम अलग प्रोबेबिलिटी लेते हैं, मानो कि z इज इक्वल टू 6 है, इधर हम लोग 3 इंटू 2 करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग n1 रख देंगे और यहाँ पे n2 रख देंगे। अभी मुझे RHS से इस साइड वही 6 जितना लाना है, तो मैं क्या करूँगा 3 रेज टू 1 इंटू 2 रेज टू 1। तो इधर मैं बोल सकता हूँ कि n1 मैंने 1 लिया है और n2 1 लिया है, तो इधर मैं लिख देता हूँ n1 1 लिया है और n2 1 लिया है। ओके, तो n इज इक्वल टू मीन्स नंबर ऑफ स्टेजेस इज इक्वल टू n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ओके, मानो कि z इज इक्वल टू 9 होता तो हम लोग क्या करते 3 इंटू 3, इधर क्या करते n1 लिखते, इधर n2 लिखते। अभी मुझे RHS और LHS सेट करने हैं, तो 3 रेज टू 1 इंटू 3 रेज टू 1 मीन्स तो ही तो 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। अगर मानो कि मैं 2 ले लेता तो क्या हो जाता 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 27 हो जाता, तो ये नॉट इक्वल टू होता। तो यहाँ पे मैं n1 इज इक्वल टू 1 आया मेरा, इस केस में n1 इज इक्वल टू 1 आया और n2 इज इक्वल टू 1 आया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेजेस कितने बने n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ स्टेजेस 2 आए, मतलब कि हमारा जो गियर बॉक्स बनेगा उसमें 2 स्टेजेस का बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे कंपलसरी कि हेंस 2 स्टेज गियर बॉक्स इज सिलेक्टेड विथ 1 स्टेज ऑफ 2 स्पीड स्टेप्स p इज इक्वल टू 2। हम लोगों ने p इज इक्वल टू 2 लिया था यहाँ पे, तो लिखेंगे विथ 2 स्पीड स्टेप्स एंड अदर स्टेज ऑफ 3 स्पीड स्टेप्स। नाउ स्ट्रक्चर फॉर्मूला, भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला है z इज इक्वल टू pn xn, pn इंटू xn। नाउ मेरे पास कैपिटल N कितना है आगे के स्टेज में, 2 स्टेजेस आया, तो इधर मैं कैसे लिख सकता हूँ p1 x1 इंटू p2 x2। अभी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ z की, z मुझे पता है कि z मेरे पास 6 है, तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2x1
इंटू 3x2, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी ऐसा भी है, मतलब कि आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो 3x1 इंटू 2x2। ओके, तो ये नंबर इक्वेशन नंबर हम लोग 1 देते। हम लोगों ने p की वैल्यू रख दी, मतलब p1 और p2 की वैल्यू रख दी इधर। ओके, अभी हम लोग वैल्यू रखेंगे x1 x2 की। ओके, हम लोगों ने p1 और p2 की वैल्यू किसके बेस पे रखी है, z इज इक्वल टू 6 है उसके बेस पे। आगे जो हम लोग 2 और 3 लेते हैं उसके बेस पे नहीं। ओके, यहाँ पे चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x1 x2 और यहाँ पे भी x1 और x2 है, तो इसकी वैल्यू पुट कराने वाले। तो वैल्यू पुट कराने हैं हम लोग को, तो हम लोग एक टेबल का यूज़ करेंगे। वो टेबल है x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू p1 इंटू 1, x3 इज इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू 1, x4 इज इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू 1। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोग को कितना, दो ही वैल्यू चाहिए, x1 और x2 का ही, तो मैं ये इतना ही यूज़ करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x1 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू p1। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि p1 मेरा 2 है, सबसे पहले मैं ये ले रहा हूँ, p1 2 है, तो एक ये बना। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एक ये हुआ कि 1 और 2 वैल्यू मिला। लेकिन मानो कि x1 इज इक्वल टू मैं 1 ले रहा हूँ और x2 इज इक्वल टू, ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना कि 3 भी मैं ले सकता हूँ, तो मेरा बना 1 3। अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 2 और 1 3 दोनों को इधर पुट कराना है, कहाँ पे, इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो सबसे पहले मैं इसके लिए लिखूंगा 2 3 के लिए। ओके, आप लोग पढ़ ही चुके होंगे आगे कैसे बनाते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ओके, कि आप लोग को याद ही होगा 2 3 2 3। तो सबसे पहले मैं ये 1 2 वैल्यू पुट करा रहा हूँ, तो ये 1 2 पर लिखा, और 2 1 भी आप लोग लिख सकते हो, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने हैं हम लोग को। तो ऐसे सिमिलर 1 3 पुट कराया और 3 1 भी आप लिख सकते हो, तो ऐसे करके हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। सिमिलरली ये मैं 3 2 के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मैं 1 2 वैल्यू पुट कराया, अभी 2 आगे ले लिया तो ये 2 1 हो गया। अभी 1 3 वैल्यू पुट कराया, अभी 3 आगे ले लिया तो 3 1 बन गया। तो ये आप लोग के अलग अलग कॉम्बिनेशंस बने, इसको बोला जाता है कैंडिडेट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अभी कैंडिडेट स्ट्रक्चर फॉर्मूला मतलब ये तो बहुत सारे हो गए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्राई करेंगे कि अलग अलग केसेस लेके उसमें से कुछ ओमिट करने की। नाउ ये हम लोग को अलग अलग कैंडिडेट स्ट्रक्चर फॉर्मूला मिले, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कुछ ओमिट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहले पहला कंडीशन है पी के एक्स के ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। अगर ये कंडीशन हुआ तो हम लोग बोलेंगे नॉट फिजिबल। और उसके बाद दूसरा कंडीशन है जेड डिवाइडेड बाई पी के एक्स के इज इक्वल टू, अगर जो वैल्यू उसका नॉन इंटीजर आया तो नॉट फिजिबल कंसिडर करेंगे। मतलब इसको बोला जाता है पी के और इसको एक्स के। हम लोगों ने आगे बोला था कि ये हम लोग का किया है ये पी एक्स, तो वैसे ही पी के एक्स के बोल रहे हैं। यहाँ पे के इज इक्वल टू 1 ले लिया, इधर के इज इक्वल टू 2 ले लिया मैंने। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये इसके लिए चेक करूँगा 2 1 3 2 के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पहला कंडीशन ही चेक करेंगे पूरे स्ट्रक्चर फॉर्मूला में, उसके बाद दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले में तो यहाँ पे पी के इंटू एक्स के मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2 हुआ। 2 इंटू 1 मीन्स इनका मल्टीप्लीकेशन 2 हुआ। ओके, वो 6 से कम हुआ, 6 से कम है मतलब चलेगा। ओके, 6 से ज़्यादा हुआ तो नहीं चलेगा, इक्वल टू 6 हुआ तो भी चलेगा। क्यों 6 हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में z इज इक्वल टू 6 है। ओके, यहाँ पे इसके बाद इसको चेक करते हैं 3 इंटू 2, तो क्या बना आप लोग का 3 इंटू 2 6 हुआ, मतलब इक्वल टू हो गया, मतलब चलेगा। इसके बाद 2 इंटू 2 4, 4 6 से कम है तो चलेगा। इसके बाद 3 इंटू 1 3 हुआ, 6 से कम है तो चलेगा। इसके बाद 2 इंटू 1 2 हुआ तो
चलेगा। इसके बाद 3 इंटू 3 9, 9 हुआ। तो हम लोग क्या 6 से ज़्यादा हो गया, तो 6 से ज़्यादा हो गया तो नहीं चलेगा। यहाँ पे जेड से ज़्यादा हो गया ऐसा भी बोल सकते हो आप लोग, तो नहीं चलेगा। इसके बाद 2 इंटू 3 6 इक्वल है जेड के साथ, 6 के साथ तो चलेगा। 3 इंटू 1 चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं 3 इंटू 1 तो 3 हुआ, मतलब 6 से कम में चलेगा। 2 इंटू 2 तो 4 हुआ, 6 से कम में चलेगा। 3 इंटू 2 6 इक्वल टू है, चलेगा। 2 इंटू 1 2 है, 6 से कम में चलेगा। 3 इंटू 1 3 है, 6 से कम में तो चलेगा। 2 इंटू 3 6 है तो इक्वल टू है तो भी चलेगा। 3 इंटू 3 मतलब z जो हमारा 6 है उससे ज़्यादा हो गया तो ये नहीं चलेगा, मतलब इस ये ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। इधर भी ऐसा ही हुआ, 3 इंटू 3 9 है, ये तो कम है z से, लेकिन इसकी वजह से ये पूरा कैंसिल हो गया। चलो ये पूरा हम लोगों ने पहला कंडीशन चेक कर लिया। उसके बाद दूसरा कंडीशन चेक करते, तो दूसरे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, z डिवाइडेड बाई पी के एक्स की, मतलब इधर क्या करने वाले, z हम लोग का 6 है, z हम लोग का 6 है डिवाइडेड बाई पी के एक्स की। तो सबसे पहले मैं इसके लिए बोलूँ तो z डिवाइडेड बाई, मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2 तो 3, मतलब वैल्यू इंटीजर आ रहा है तो चलेगा। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 तो वैल्यू 3 आ रहा है, मतलब इंटीजर वैल्यू आ रहा है तो चलेगा। 6 डिवाइडेड बाई 6 तो 6 डिवाइडेड बाई 6 हुआ तो चलेगा ये। इसके बाद 6 इसकी बात कर रहा हूँ, z हमारा 6 है तो 6 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो वैल्यू नॉन इंटीजर आएगा, तो ये उसकी वजह से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये तो कैंसिल ही ऑलरेडी। इसके बाद z हमारा 6 है तो 6 डिवाइडेड बाई 6 मतलब ये चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आते तो 6 डिवाइडेड बाई 3 मतलब ये चल जाएगा। इसके बाद 6 डिवाइडेड बाई 3 कर रहे तो 2 आएगा, मतलब चलेगा। 6 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा इधर, मतलब वैल्यू नॉन इंटीजर आएगी तो ये नहीं चलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या होगा, z डिवाइडेड बाई मीन्स 6 डिवाइडेड बाई 6 तो ये चल जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 2 तो इसका मल्टीप्लीकेशन 2 होगा तो ये भी चल जाएगा। इसके बाद 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 तो 3 आएगा तो ये भी चल जाएगा। अभी इसके लिए आगे बढ़ते हैं तो z हमारा 6 है डिवाइडेड बाई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 2 का मल्टीप्लीकेशन 6 आएगा, मतलब 6 डिवाइडेड बाई 6 तो 1 हो जाएगा, मतलब इंटीजर वैल्यू आ रहा है तो चलेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 मतलब 2 होगा तो 3 आएगा, मतलब ये चलेगा। इसके बाद 6 डिवाइडेड बाई 3 तो ये चल जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 6 तो ये चल जाएगा, मतलब कितने ओमिट हुए, एक ये कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो रहा है, एक ये कैंसिल हो रहा है, एक कैंसिल हो रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग को पता चल गया कि इतने वैलिड रहेंगे, मतलब इतने स्ट्रक्चर फॉर्मूला के हम लोग स्ट्रक्चर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ओके, कैसे ड्रॉ करना है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ एक पेज में। सबसे पहले अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला फाइंड कर लिए कि कितने रहेंगे, कितने कंसिडर होंगे। अभी मुझे उसके डायग्राम ड्रॉ करने हैं, उसको बोला जाता है स्ट्रक्चर डायग्राम। अभी स्ट्रक्चर डायग्राम बनाना है। ओके, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ। तो अभी सबसे पहले देखा जाता है कि कितनी वर्टिकल लाइंस आप लोग ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पे n+1 वर्टिकल लाइन ड्रॉ होती है। मैं स्ट्रक्चर डायग्राम की बात कर रहा हूँ। n+1 तो यहाँ पे हमारा स्टेजेस कितने थे, नंबर ऑफ स्टेजेस हम लोग के पास 2 थे, 2+1 3 मीन्स 3 वर्टिकल लाइन आएगी, और z जितना होगा उतनी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। तो सबसे पहले मैं मार्किंग कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो 1 2 3 4 5 और 6।
ये मेरी लाइन हो गई। अभी मुझे वर्टिकल लाइन कितनी ड्रॉ करनी है, 3 लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हो गया 3। ओके, इस बॉक्स को पूरा बंद कर देंगे हम लोग। अभी यहाँ पे लिखेंगे इनपुट शाफ्ट, यहाँ पे इंटरमीडिएट शाफ्ट लिखेंगे और यहाँ पे आउटपुट शाफ्ट लिखेंगे। ओके, अभी नंबरिंग होगा, इसको ऊपर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। सिमिलर हियर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए लिख देते हैं 2 1 3 2। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है तो उसको मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो 2 1 3 2। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी हम लोग, मैंने ड्रॉ किया हुआ है डायरेक्टली। इसके बाद हम लोग लेंगे 2 3 3 1, सिमिलर ऐसा ही करेंगे, सेम टू सेम। इसके बाद तीसरा लेंगे 3 2 2 1 और उसके बाद फोर्थ वन लेंगे 3 1 2 3। ओके, तो मैंने डायरेक्ट प्रिपेयर कर लिया सभी डायग्राम्स को, आप लोग देख सकते हो, यही मैंने लिखा है 2 1 3 2। ओके, दूसरा है 2 3 3 1, इसके बाद तीसरा है 3 2 2 1, उसके बाद लास्ट वन है 3 1 2 3। ओके, ABCD नंबरिंग कर दी है यहाँ पे और डायरेक्टली सब लोग कुछ लिखा ही हुआ है नंबरिंग के साथ। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से 2 1 3 2 से। ओके, तो यहाँ पे शॉर्ट में मैं बोलता हूँ LD, कुछ हम लोग शॉर्ट में याद रखने के लिए ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या फॉलो करेंगे, 2 लाइन हम लोग को ड्रॉ करनी है और एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, ऐसा याद रखेंगे हम लोग। यहाँ पे 3 लाइन और 2 डिस्टेंस ऐसे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हम लोग को याद रखना पड़ेगा, Z हम लोग का कितना आया था, 6 आया था, मीन्स इवन नंबर था। तो जब भी इवन टर्म्स आएंगे तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मतलब मिड से, इसको मिड बोला जाता है और इसको नोड बोला जाता है। 1 2 3 4 5 6, ये सब नोड्स हैं, ये सब नोड्स है। ओके, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, Z = 6 से आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग ध्यान रखेंगे, हम लोग बीच में से स्टार्ट करेंगे। मतलब ये 1 हुआ डिस्टेंस, उसका आधा 0.5 हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। तो 1 डिस्टेंस 2 डिस्टेंस मीन 2.5 मैंने नीचे छोड़ दिया और 1 2 2.5 मैंने ऊपर छोड़ दिया, मतलब ये मेरा मिड हो गया। अभी मुझे क्या देखना है, 2 1 लाना है, मीन्स 2 लाइन ड्रॉ करनी है और एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये मेरा आगे इधर मिड पॉइंट हुआ, इधर मैं 2 लाइन ड्रॉ करूँगा और बीच का जो पॉइंट आया ये, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 0.5 0.5, तो 1 डिस्टेंस हो गया मेरा। इसके बाद मुझे आगे बढ़ना है। अभी मुझे क्या देखना है, 3 लाइन ड्रॉ करना है और इन तीनों लाइन के बीच में मुझे 2 डिस्टेंस लाना है। तो सबसे पहले मैं ये पॉइंट जोड़ देता हूँ यहाँ पे 1 पे, ये नोड को जो कनेक्ट कर देता हूँ 1, एक लाइन मेरा हो गया है। और कितना डिस्टेंस मुझे लाना है, 2 लाना डिस्टेंस, तो 1 2 डिस्टेंस, तो एक इधर आ गया। इसके बाद 1 2 डिस्टेंस मुझे लाना है, तो यहाँ पे आ गया ये पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मैंने कितनी लाइन बनाई, 1 2 3, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे बोले 1 2 डिस्टेंस। ये पॉइंट्स हो गया। अभी ये पॉइंट्स पे आते हैं, फोर्थ पॉइंट पे। तो फोर्थ पॉइंट पे भी मुझे 3 लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। जनरली पॉइंट आप लोग सामने कनेक्ट कर सकते हो, 3 लाइन अगर आती है तो देख लो कि डिस्टेंस हो रहा है कि नहीं। ओके, और यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ सेकंड पे, ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद ये डिस्टेंस यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 2 डिस्टेंस आ गया, एक डिस्टेंस और दूसरा डिस्टेंस। इसके बाद दूसरा डिस्टेंस लाना है, तो ये आ गया। इसको थोड़ा अलग मार्किंग कर देते हैं रेड पेन से, ताकि आप लोग को दिखे। ये किया मैंने, ये नेक्स्ट वन जो किया वो उसके पहले वाला ब्लैक पेंसिल से था। तो यहाँ पे मैंने कितनी लाइन बनाई, 3 लाइन बनाई। ये एक लाइन पहली बनाई, उसके बाद ये लाइन बनाई और ये लाइन बनाई। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 और 2। यहाँ पे डिस्टेंस 1 और 2।
ये जो डिस्टेंस है उसको 1 बोला जाता है, उसके आधा 0.5। ओके, चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2, 3 और 3, 1 के लिए ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर डायग्राम। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सब में पैटर्न सेम ही रहेगा, मिड से स्टार्ट करते हैं। तो अभी मुझे कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, 2 लाइन ड्रॉ करनी है और 3 डिस्टेंस मेंटेन करने हैं। तो यहाँ पे मुझे 3 डिस्टेंस लाना है, मतलब जो 2 लाइन ड्रॉ करूंगा उनके बीच में 3 डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसा मार्किंग करना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये मेरा मिड पॉइंट है। अभी मुझे 3 डिस्टेंस लाना है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1.5 मुझे ऊपर जाना है और 1.5 नीचे आना है। तो यहाँ से 0.5 हो गया और 1 हो गया, मतलब ये पॉइंट मेरा मार्क हो गया। तो इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद 0.5 और 1, तो हो गया आपका 3 डिस्टेंस, 1, 2 और 3। इधर क्या है, 2 लाइन ड्रॉ करनी है, तो 2 लाइन और बीच में 3 डिस्टेंस लाना है, तो 1, 2 और 3। इधर मैंने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पे मार्क कर लिया था। उसके बाद 1.5 ऊपर गया और 1.5 नीचे गया, तो ही तो 3 होगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 3 लाइन और 1 डिस्टेंस लाना है। ओके, तो यहाँ से मुझे अभी एक्सटेंड करना है। जो पॉइंट्स मार्क हो गए वहीं से आप लोग एक्सटेंड कर सकते हो, दूसरे पॉइंट नहीं ले सकते 6, 3। ओके, जहाँ पे एंड हुआ होगा, मतलब यहाँ से स्पीड यहाँ पे आता है, अभी आप लोग को आगे बढ़ना है। तो 2 पे आ गए हम लोग। अभी मुझे क्या लाना है, 3 लाइन और 1 डिस्टेंस लाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया, 1 डिस्टेंस लाना है, मतलब ये लाइन इधर ही आएगा। ओके, और ये इधर आ गया। तो मेरा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ 3 लाइन हो गया, 1, 2 और 3 लाइन, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 डिस्टेंस हो गया, इन दोनों का बीच डिस्टेंस 1 हो गया। चलो अभी इस नोड के लिए आगे लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 लाइन लाना है, तो जनरली मैं यही कनेक्ट करूँगा, 4, ये 5 आ गया और ये 6 आ गया। तो इधर मैं बोल सकता हूँ 3 लाइन मेरे पास आ गई, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 1 डिस्टेंस, इसके बीच में 1 डिस्टेंस और इसके बीच में 1 डिस्टेंस हो गया। जनरली आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्ट्रक्चर डायग्राम सही है कि नहीं, ये जो एंड वाले जो शाफ्ट होते हैं उसके सभी नोड कनेक्ट हो जाने चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे स्ट्रक्चर डायग्राम सही है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते, यहाँ पे LD फिर से लिख देते, आप लोग को डायरेक्टली याद रह जाता है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। यहाँ पे 3/4 मैंने लिख दिया है, बीच पॉइंट मार्क कर दिया है। अभी मुझे क्या करना है, 3 लाइन ड्रॉ करनी है और 2 डिस्टेंस लाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे मार्क कर लेते इन दोनों के बीच का 3 लाइन मुझे लानी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने आगे बोला था कि 3 लाइन जब आती है तब हम लोग एक सामने डिस्टेंस ले ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक लाइन। इसके बाद मुझे लाइन दूसरा ड्रॉ करना है, तो मुझे कितना डिस्टेंस लाना है, 2। तो ये 0.5 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब ये टोटल 1.5 हो गया, और ये यहाँ पे 2। तो ये मैं कनेक्ट करता हूँ, तो अब गिन सकते हो फिर से, 0.5, 1 मीन्स 1.5 और 2 हो गया। अभी सेम नीचे 0.5, 1.5 और 2, फिर से गिन लेंगे 0.5, 1.5 और 2। ओके, अभी मुझे लास्ट में क्या लाना है, 2 लाइन ड्रॉ करनी है और 1 डिस्टेंस लाना है। 2 लाइन ड्रॉ करनी है, तो मतलब ये हो गया एक यहाँ पे और ये एक हो गया यहाँ पे। तो इधर से मैं बोल सकता हूँ कि 2 लाइन आ गई और इन दोनों के बीच का 1 डिस्टेंस आ गया। सिमिलर यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर लिया और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस 1 आ गया। सिमिलर यहाँ पे 2 लाइन आ गया, 2 लाइन आ गया और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस 1 आ गया। चलो इसके बाद फिर से हम लोग मिड से लेते हैं, तो वो पैटर्न फिक्स रहेगा। ओके, चेंज नहीं कर सकते आप लोग। एक बार जो ले लिया, आप लोगों ने यहाँ से लिया था तो यहाँ से ही लेना पड़ेगा हर बार। ओके, यहाँ से लिया तो यहाँ पे ही हर बार रहेगा, मतलब सब जगह पे सेम फॉलो करेंगे। चलो 3/4 पे अभी मुझे कितनी लाइन लानी है, 3 लाइन लानी है और 1 डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे 1 लाइन, 3 लाइन लानी है, तो हम लोगों ने एक लाइन ले लिया। यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग आगे एक ले ही लेते हैं 3 लाइन जब हो तो। इसके बाद मुझे 1 डिस्टेंस लाना है, तो 0.5 ऊपर चले गए और ये यहाँ पे आ कर दिया।
तो ऐसा बोल सकता हूँ 0.5 प्लस 0.5 मतलब 1 हो गया। इसके बाद 0.5 प्लस 0.5 तो यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे 3 लाइन मेरी आ गई है, 1 2 3 लाइन। वहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ 0.5 0.5 1 हो गया। यहाँ पे 0.5 0.5 1 हो गया। तो ये करेक्ट है। इसके बाद 2 लाइन एंड 3 डिस्टेंस, 2 लाइन लानी है। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। 2 लाइन मेरे आ गई। सबसे पहले मैं देखो आप 1 को कनेक्ट कर ही देता हूँ हर बार। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि जो आप लोग के जो एंड शाफ्ट होते हैं इसके सभी नोड कनेक्ट होते ही है लास्ट में। अभी 2 लाइन लानी है मुझे और 3 डिस्टेंस लाना। 3 डिस्टेंस लाना है तो 1 2 3, तो यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगा। मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2 लाइन आ गई और यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ 1 2 और 3। ओके, अभी इस पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इस नोड को आगे बढ़ाएंगे। अभी मुझे क्या पॉइंट पे ले जाना है, सेकंड पॉइंट पे ले जाएगी। 2 लाइन लानी है तो दूसरी लाइन ड्रॉ करनी बाकी है। मैं डिस्टेंस चेक कर लेता हूँ 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगी। चलो, इसके बाद हम लोग ये पॉइंट को आगे बढ़ाने वाले। तो मैंने क्या किया 3 पॉइंट पे मार्क कर लिया और दूसरा लाइन आएगा तो कितना डिस्टेंस 1 2 3 डिस्टेंस। ओके, 1 2 3 4 5 6 सभी कनेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ आप लोग का कि जो एंड नोड्स है एंड शाफ्ट के, मतलब कि आउटपुट शाफ्ट के सभी कनेक्ट हो चुके हैं थर्ड के ऊपर। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 1 2 3 और 4 स्ट्रक्चर फॉर्मूला थे। ओके, इसको मैंने स्ट्रक्चर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। अभी उसमें से हम लोग एक ऑप्टिमम सिलेक्ट करने वाले हैं, इसलिए हम लोग ये पूरा मेथड कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है ABCD नंबरिंग कर दिया है। आप लोग ये पूरा ना लिखो तो भी चलेगा, सिर्फ ABCD लिख दो। ओके, टाइम अगर आप लोग को जल्दी से करना है तो अभी हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। अभी हम लोग को ये टेबल प्रिपेयर करना है, उस टेबल का नाम है ऑप्टिमम स्ट्रक्चर डायग्राम। अभी यहाँ पे क्या लिखा है फिजिबल स्ट्रक्चर डायग्राम और शाफ्ट 1 शाफ्ट 2 शाफ्ट 3। 3 शाफ्ट क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे भी 3 शाफ्ट है। ओके, सब जगह पे आप देख सकते हो। और इसके बाद समेशन करेंगे नोड नंबर्स का और रिमार्क में कुछ लिखने वाले हम लोग। ओके, तो सबसे पहले ए के लिए हम लोग चले जाते हैं। ए के लिए मार्किंग करेंगे तो शाफ्ट 1 पे, तो यहाँ पे कितना पॉइंट से 3.5 है। हम लोग इस साइड नीचे वाले को लेके कंसिडर करेंगे। ओके, बैक साइड को कंसिडर करेंगे यहाँ पे, तो 3.5 हुआ। मैं शाफ्ट 1 के ऊपर बोल रहा हूँ, शाफ्ट 1 के ऊपर 3.5। इसके बाद शाफ्ट 2 के ऊपर चले जाते तो एंड पे कौन सा हुआ ये कंसिडर करेंगे। एंड पे कितना हुआ आप लोग का 4 हुआ। 1 2 3 4 इधर है, 4 आएगा। इसके बाद शाफ्ट 3 के लिए, तो शाफ्ट 3 के लिए कितना आएगा यहाँ पे 6 होगा, तो 6 आ जाएगा। ओके, तो ये टोटल कितना हुआ 4 + 6 10, 10 + 3.5 तो 13.5। इसके बाद बी के लिए आगे चले जाते हैं। बी कौन सा है 2 3 3 1 वाला, तो यहाँ पे क्या बैक साइड कंसिडर करेंगे ये। तो ऐसा बोल सकता हूँ ये पॉइंट आएगा, मतलब ये नोड आएगा, ये नोड आएगा और ये नोड आएगा। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे हम लोग 3.5, यहाँ पे 5 आएगा। ओके, यहाँ पे 6 आएगा। तो इसका समेशन क्या करेंगे 5 + 6 11 11 12 13 14 14.5। ओके, इसके बाद आगे 3 2 2 1 के लिए, तो यहाँ पे क्या रहेगा ये नोड्स आएंगे, ये नोड्स आएगा और ये नोड्स आएगा। तो क्या रहेगा 3.5। इसके बाद 5.5, 3.5 आएगा। इसके बाद 5.5 आएगा। इसके बाद 6 आएगा। ओके, तो ये समेशन कितना हो रहा है, तो यहाँ पे समेशन कितना हो रहा है आप लोग का 15। ओके, 6 + 5 11, 11 + 3 14 और 0.5 करके 15। इसके बाद यहाँ पे 3 1 2 3 के ऊपर, तो यहाँ पे कितना आपका 3.5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3.5। इसके बाद आप लोग का 4.5 है। इसके बाद 6 से, तो ये कितना होगा आप लोग का 14 होगा। अभी हम लोग
किसको सिलेक्ट करेंगे? जिसका नोड नंबर का समेशन कम होगा, सबसे कम होगा, तो यहाँ पे सबसे कम 13.5 का है, तो मैं इसे लिखूंगा ऑप्टिमम। तो ये हम लोग सिलेक्ट करेंगे, फाइनल हमारा ऑप्टिमम स्ट्रक्चर आएगा। आगे के थोड़े से स्टेप्स में देख लेते हैं। इधर मुझे कैंडिडेट स्ट्रक्चर फॉर्मूला मिले थे, उसमें से मैंने कुछ को ओमिट किया, उसके बाद सबके मैंने स्ट्रक्चर डायग्राम बनाए इधर। इसके बाद ऑप्टिमम स्ट्रक्चर डायग्राम का टेबल बनाया। यहाँ से मुझे पता चला कि ये जो 2132 है वो ऑप्टिमम रहेगा, मतलब आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर गियर बॉक्स का डिज़ाइन करना है तो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसको मैं बोलूँगा मेरा ऑप्टिमम स्ट्रक्चर डायग्राम। अभी ऑप्टिमम स्ट्रक्चर डायग्राम, और आप लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर डायग्राम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद मैं बनाऊँगा मेरे ऑप्टिमम स्पीड डायग्राम, और आप लोग बोल सकते हो स्पीड डायग्राम, और उसको दूसरा बोला जाता है रे डायग्राम भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मुझे पता चल गया कि ये मेरा ऑप्टिमम है 2132, तो 2132, तो इसको सबसे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, नंबरिंग नहीं करूँगा, सिर्फ लाइंस कॉपी कर लूँगा। तो 1 2 3 4 5 और 6, इसके बाद यहाँ पे भी सेम टू सेम वही कॉपी करना है। ओके, जो ऑप्टिमम स्ट्रक्चर डायग्राम आता है उसको ही कॉपी करेंगे, बाकी के कॉपी नहीं करेंगे। 2132। ओके, इसकी लाइंस भी ले लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पे मार्किंग किया था वो ध्यान में रखेंगे। डाई डिस्टेंस नीचे, डाई डिस्टेंस ऊपर, 2 लाइन, 1 डिस्टेंस, और यहाँ पे 3 लाइन है और 2 डिस्टेंस, इसके बाद 3 लाइन, 2 डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे मैंने नंबरिंग किया था ऊपर से 1 2 3 4 5 6, भी यहाँ पे नंबरिंग करेंगे नीचे से, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्पीड डायग्राम है तो स्पीड के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब N1 N2 N3 N4 N5 और N6। ओके, इसको इनपुट शाफ्ट बोल देते हैं, इंटरमीडिएट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट। ओके, दूसरा हम लोगों ने आगे जब कैलकुलेशन किया था तब स्पीड फाइन की थी, वही स्पीड मुझे रख देनी है इधर। N1 कितना है मेरा 56, N2 100 RPM लिखेंगे सब जगह पे। ओके, N3 177 RPM, N4 315 RPM, N5 560 RPM और N6 1000 RPM। अभी मुझे इलेक्ट्रिक मोटर की स्पीड गिवन है 720 RPM। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 720 RPM कहाँ पे आएगा, 720 RPM आएगा तो इधर कुछ समथिंग आएगा। ओके, एग्जैक्टली मैं यहाँ पे कुछ मार्क कर देता हूँ NEM, और वो है 720 RPM। ओके, हम लोग ग्रेड पेन से थोड़ा सा मार्क कर देते हैं। यहाँ पे ये 560 है और 1000 है, तो मेरा N इलेक्ट्रिक मोटर का क्या आएगा, 720 इधर आएगा। ओके, अभी मुझे क्या करना है, ये मैंने 3 शाफ्ट तो ले लिए, लेकिन स्पीड लानी है, तो स्पीड कहाँ से आएगी, मोटर से आएगी। तो उसके लिए मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ, यहाँ तक एक्सटेंड किया, यहाँ पे एक्सटेंड किया। ओके, और ये हम लोग का बन गया। ओके, इसको बोलते हैं मोटर शाफ्ट। मतलब यहाँ पे स्पीड डायग्राम में मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग के N+1 तो वर्टिकल लाइन्स आने ही वाली है। N हमारा 2 था, तो 2+1 3 वर्टिकल लाइन्स तो आने ही वाले, प्लस मोटर शाफ्ट के लिए एक और वर्टिकल लाइन हम लोग इंक्लूड करेंगे, और जो मोटर की स्पीड आएगी यहाँ पे जो हम लोग इंडिकेट कर रहे थे उसको वहाँ तक एक्सटेंड करेंगे। ओके, मतलब मोटर का स्पीड आया, अभी ये मोटर का स्पीड कहाँ पे हम लोग यहाँ पे देंगे, इनपुट में। ओके, तो ये मेरा बन गया
मोटर शाफ्ट के साथ कनेक्शन, और उसको मैं बोलूँगा स्पीड डायग्राम और रे डायग्राम। चलो, इसके बाद हम लोग काइनेमेटिक डायग्राम प्रिपेयर कर लेते हैं आप लोग की। काइनेमेटिक डायग्राम, और उसको दूसरा बोला जाता है गियरिंग डायग्राम। अभी काइनेमेटिक डायग्राम और गियरिंग डायग्राम ड्रॉ करने, तो मुझे पता है ओके कि यहाँ पे कितने शाफ्ट थे मेरे पास, 3 शाफ्ट थे, 1 2 3, 1 2 3, ये तो मोटर शाफ्ट है, 1 2 3 1 2 3, तो मैं 3 लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ओके। 3 शाफ्ट है इसलिए 3 लाइन, मानो कि 4 शाफ्ट होते तो 4 लाइन ओके। बीच का डिस्टेंस 3 ही मेंटेन करेंगे हम लोग कुछ थोड़ा फिक्स कर रहे हैं रूल्स जैसे ओके। जनरली आप बुक में देखोगे तो ऐसे कुछ रूल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन हम लोग का कुछ अच्छे से डायग्राम दिखे इसलिए हम लोग ऐसा बना रहे हैं ओके। तो 3 लाइन मैंने बना ली क्योंकि मेरे पास 3 शाफ्ट है, 1 2 3 ओके, 1 2 3। अभी सबसे पहले यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले शाफ्ट में मैं 2 गियर रखूँगा क्योंकि यहाँ मेरे पास 2 है। जब भी 2 गियर्स आएंगे तो एक छोटा गियर होगा और एक बड़ा गियर होगा ओके। तो छोटे गियर को इंडिकेट करना है तो मैं ऐसे इंडिकेट करूँगा, मतलब ये एक लाइन ऊपर गया और सेम एक लाइन नीचे आया ओके। एक बड़ा गियर आएगा तो वो क्या करेंगे, 2 लाइन ऊपर जाएगा और 2 लाइन नीचे आएगा ओके। इसके बाद एक लाइन छोड़ देते हैं हम लोग ओके, और सीधा यहाँ पे आ जाते। ऐसे रूल्स है ओके थोड़े बहुत। तो यहाँ पे कितने लाना है मुझे, 3 गियर्स को लाना है। तो 3 गियर्स को लाना है तो सबसे पहले एक बड़ा गियर्स आएगा, बड़े गियर्स में मैंने इधर बोला था कि 2 लाइन ऊपर जाते हैं 2 लाइन नीचे आते हैं। उसके बाद मुझे कितने 3 गियर्स लाने हैं, तो इधर मैं इंटरमीडिएट गियर ला रहा हूँ, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गियर। इंटरमीडिएट गियर में हम लोग क्या करते हैं, 1.5 ऊपर जाते हैं। ये 1 हुआ इतना, 1 लाइन जितना डिस्टेंस 0.5, 1 और 1.5, और एक छोटा गियर। छोटा गियर मैंने बोला था कि एक लाइन ऊपर जाते एक लाइन नीचे आते, ऐसे करके रूल्स डिफाइन करते हैं हम लोग काइनेमेटिक डायग्राम में। ये हम लोगों ने इंक्लूड किया है 2 गियर्स, एक छोटा एक बड़ा, इधर 3 गियर्स, एक बड़ा इंक्लूड किया पहले, इसके बाद एक इंटरमीडिएट किया और इसके बाद एक छोटा किया ओके। अभी मुझे ये शाफ्ट से स्पीड को इस शाफ्ट पे लाना है ओके। तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ मैशिंग में गियर को लगाऊंगा ओके। तो यहाँ पे मैशिंग में मैं ये गियर लगा रहा हूँ, हम लोग छोटे गियर के साथ ही मैशिंग में लाएंगे ओके। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जब ये गियर और ये गियर मैशिंग में आएंगे तो इस शाफ्ट का स्पीड इस शाफ्ट के ऊपर आ जाएगा। तो एक तो हो गया ओके, लेकिन ये मैशिंग करना है तो ये तो छोटा गियर है, तो उसके सामने हम लोग एक दूसरा गियर लगाएंगे, बड़ा गियर। मतलब आप लोग बोल सकते हो कि इधर 2 गियर है तो उसके सामने भी 2 गियर हो गए, तो ही मैशिंग पॉसिबल है इसका इसके साथ ओके। मानो कि मैं इसको इस साइड मूवमेंट कराऊंगा तो ये और ये मैश हो जाएगा ओके। अभी मूवमेंट इस साइड है तो ये छोटे गियर्स के साथ मैच कर रहे हैं ओके। अभी इस शाफ्ट का स्पीड मुझे इस शाफ्ट पे ले जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने बोला था कि छोटे गियर के साथ ही मैशिंग कराएंगे, मतलब डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तब ये आ गया छोटा गियर, तो ये शाफ्ट का स्पीड यहाँ पे आ गया ओके। सिमिलर इसको और इसको मैशिंग कराना है इंटरमीडिएट गियर को, तो मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ इस साइड, ये इंटरमीडिएट गियर है, 1.5 ऊपर 1.5 नीचे, तो सिमिलर ये 1.5 ऊपर 1.5 नीचे गया। और यहाँ पे ये छोटे गियर के साथ मैशिंग कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे गियर के साथ मैशिंग कराना तो बड़ा गियर ही आएगा ओके। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग ओके। अभी हम लोग डायग्राम को क्लोज कर देते हैं।
तो ये आपका गियर बॉक्स बन गया है। ओके, अभी नंबरिंग कर देते हैं। इसको पहला गियर बोलेंगे तो Z1 इनपुट में है तो I, और Z1O आउटपुट के लिए O। सिमिलर सेकंड गियर के लिए Z2 इनपुट में, और इसका यहाँ पे सामने वाला Z2 सेकंड गियर के साथ सेकंड गियर उसका आउटपुट। इसके बाद ये Z3 गियर बोलेगी इनपुट में, उसके सामने वाला Z3O आउटपुट में। इसको बोलेगी Z4I इनपुट में, इसके सामने Z4 आएगा आउटपुट में। इसको बोलेगी Z5I, और इसको बोले Z5 आउटपुट में। मतलब जब Z1 और ZO कांटेक्ट में आएंगे तो मैशिंग होगा। कोई भी एक टाइम पे दो गियर के बीच में ही मैशिंग हो सकती है। ओके, ये जब मैश कर रहे तो ये दोनों मैशिंग में नहीं होंगे, दोनों एंगेज नहीं होंगे। ये दोनों जब एंगेज है तब ये दोनों एंगेज नहीं होंगे। मानो कि ये दोनों एंगेज है तो ये दोनों एंगेज नहीं होंगे, क्योंकि मैं इसका मूवमेंट इस साइड ले जाऊंगा ना, तो Z2 या इधर आ जाएगा, Z2 के साथ मैशिंग नहीं होगा। ओके, तो ये मेरा बन गया काइनेमेटिक और गियरिंग डायग्राम। अभी मैं क्या थोड़ा से पुली और बेल्ट हम लोग भी फिट कर देते हैं और मोटर भी फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पुली लगा ली। ओके, और यहाँ पे एक पुली लगा रहे हम लोग। यहाँ पे हम लोग मोटर कनेक्ट करते हैं और मोटर को बेल्ट के थ्रू ये पुली के साथ कनेक्ट करेंगे हम लोग। ओके, मतलब मैं इधर ऐसा बोल सकता हूँ कि मोटर जो है यहाँ पे कितनी स्पीड देगी, NEM जितनी। ओके, और यहाँ पे जो स्पीड मिलेगा वो NI जितना होगा, मतलब इनपुट शाफ्ट मेरा हो गया। ओके, यहाँ पे जो डायामीटर होगा उसको बोलेंगे DEM, और यहाँ पे जो डायामीटर होगा उसको बोलेंगे DI। मतलब मैं इधर बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैंने एक पुली लगाया इनपुट शाफ्ट के ऊपर। ये पूरा गियर बॉक्स है, इसका ये इनपुट शाफ्ट है। तो यहाँ पे इनपुट शाफ्ट के ऊपर मैंने एक पुली लगा दिया। ओके, वो पुली के डायामीटर को बोला मैंने DI, डायामीटर ऑफ पुली एट इनपुट शाफ्ट। ओके, और यहाँ पे क्या किया, मोटर के शाफ्ट के ऊपर मैंने एक पुली लगा दी। वो पुली के ऊपर जो उस पुली का मैंने डायामीटर को बोल दिया DEM, मीन्स डायामीटर ऑफ पुली एट इलेक्ट्रिक मोटर शाफ्ट। दोनों पुली को मैंने बेल्ट के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे मोटर जब मैं घुमाऊंगा तब मुझे जो स्पीड मिलेगी उसको मैं बोलता हूँ NEM, मीन्स इलेक्ट्रिक मोटर स्पीड। इलेक्ट्रिक मोटर शाफ्ट स्पीड की इलेक्ट्रिक मोटर स्पीड आप बोल सकते हो। तो ये मोटर जब स्पीड देगा तो ये पुली रोटेट होगी, उसकी वजह से बेल्ट रोटेट होगा, और वो बेल्ट कहाँ पे स्पीड को ट्रांसफर करेगा, यहाँ पे। उसकी वजह से क्या होगा, ये पुली घूमेगा और आप लोग को इनपुट में स्पीड मिलेगा। मतलब आप लोग NI जो है वो आपके, मतलब NI स्पीड जो है वो गियर बॉक्स के इनपुट में जाएगी, इसके ऊपर, इस शाफ्ट के ऊपर जाएगी। उस शाफ्ट की वजह से यहाँ पे ये दो मैचिंग में आ रहा है तो ये स्पीड यहाँ पे आएगी। ओके, इसके बाद ये, तो ये स्पीड इस शाफ्ट को मिलेगी। इसके बाद ये शाफ्ट का स्पीड यहाँ से यहाँ पे आएगा और आपको आउटपुट में मिलेगा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप लोगों ने मैचिंग की है उसके हिसाब से। आपका गियर बॉक्स का डिज़ाइन है उसके हिसाब से अलग अलग मिलेगी, जो हम लोग आगे बोल चुके हैं आपको। आप लोगों ने जो टेबल ड्रॉ किया था आगे यहाँ पे, मतलब ये आउटपुट है मेरा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग इतनी स्पीड गेन कर पाओगे, ये सब अलग अलग गियर के कॉम्बिनेशन की वजह से। नाउ अभी हम लोग एक टर्म्स दूसरा आप लोग को बोला गया है, डायमीटर ऑफ कुछ फाइंड करना है। डायमीटर आप लोग को फाइंड करना है पुली के रेशियो डायमीटर। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वो मुझे फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं स्पीड डायग्राम का यूज़ करता हूँ। स्पीड डायग्राम का मैं यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो, थोड़ा सा ये पहले समझ लेते हैं कि मोटर का स्पीड आया तो मोटर का स्पीड यहाँ पे आ रहा है, वो इनपुट शाफ्ट पे दिया जा रहा है। मतलब मोटर का स्पीड जो आया वो इनपुट शाफ्ट पे दिया जा रहा है। इनपुट शाफ्ट के बाद वो कहाँ पे गया, सेकंड शाफ्ट पे गया। सेकंड शाफ्ट के पे गया, सेकंड शाफ्ट के बाद वो कहाँ पे गया, उसके बाद वो थर्ड स्टेप पे गया। ओके, ये जो है वो उसको फर्स्ट स्टेज बोला गया, यहाँ से इसको सेकंड स्टेज बोला गया। मतलब आप लोग का गियर बॉक्स फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, मतलब 2 स्टेज हो गया। ओके, अभी यहाँ से मैंने क्या बोला कि मोटर जो है वहाँ स्पीड देता है उसको NEM बोला जा रहा है, और वो जो स्पीड
शाफ्ट पे आ रहा है उसको एन बोला जा रहा है। ओके, तो इधर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये डायग्राम थोड़ा देखेंगे। ओके, NIDI है यहाँ मतलब, तो गियर बॉक्स के जो इनपुट पे आता है उसको क्या बोला जाता है, NI बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये जो गियर बॉक्स के इनपुट पे आ रहा है वो NI है। स्पीड मुझे पता करना है तो मुझे स्पीड डायग्राम ही देखना पड़ेगा ना, मैं ऑप्टिमम स्ट्रक्चर डायग्राम तो नहीं देख सकता। तो NI, अभी NI मुझे गेट करना है, तो इसको मैं लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये कुछ पॉइंट मिला, लेकिन ये पॉइंट जो मुझे मिला वो N3 और N4 के बीच का है, तो मैं फाइंड नहीं कर सकता, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चल सकता। मुझे इतना पता चल गया कि 177 और 315 के बीच कुछ वैल्यू आएगा। ओके, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर्मूला है कुछ, कि सबसे पहले तो सेल का वैल्यू मैंने देख लिया कि ये सेल का वैल्यू log10 फाई है, मतलब ये log10 फाई के फॉर्म में चलता है वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, log10 N3 यहाँ तक लिख रहा हूँ, log10 N3 ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने log N3 लिख दिया, यहाँ तक डिस्टेंस, प्लस मैंने क्या बोला था, ये पूरे सेल की वैल्यू log10 फाई है, तो ये कितना हुआ, आधा हुआ उसका, तो log10 फाई बाई 2। ओके, इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ कि log10 NI होगा। log10 NI इधर है, तो इधर ऐसा बोल सकते हैं NI इधर तक है, तो log10 फाई बाई 2 प्लस log10 N3, ये पूरे सेल की वैल्यू log10 फाई है, तो log10 फाई बाई 2 प्लस log10 N3, log10 फाई बाई 2 प्लस log10 N3, तो log10 NI हो गया। अभी हम लोग वैल्यू रखेंगे, log10 N3 की वैल्यू आप लोग के पास कितनी है, आप लोग के पास N3 की वैल्यू है 177 प्लस log10 फाई की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड की थी 1.778 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू log10 NI। तो आप लोग NI कैलकुलेट करोगे तो आप लोग का कुछ वैल्यू आएगा 236 RPM अप्रोक्सीमेटली करोगे तो फाइनल आप लोग को आंसर मिलेगा 236 RPM। नाउ हम लोग क्या करेंगे आगे, हम लोग को डायमीटर ऑफ पुली के रेशियो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये थोड़ा सा टर्म समझ लेते हैं। जब भी दो गियर मैशिंग में आते हैं तब वहाँ पे फॉर्मूला आता है N1Z1 प्लस N2Z2, मतलब दो गियर मैशिंग में आ रहे हैं, तो यहाँ पे यही हो रहा है ना गियर बॉक्स में। ओके, छोटा हो या बड़ा हो, ओके, इंटरमीडिएट हो, कुछ भी, N1Z1। नाउ M आप लोग पढ़ चुके होगे, M इज इक्वल टू D बाई Z, M मीन्स मॉड्यूल। ओके, यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ रखते हैं, कैपिटल D में हम लोग डायमीटर ले रहे थे डायग्राम में, इसलिए मैं कैपिटल D लिख रहा हूँ, कैपिटल D डिवाइडेड बाई Z। ओके, तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ N1 Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z यहाँ पे चला जाएगा तो D1 डिवाइडेड बाई M, और यहाँ पे क्या हो जाएगा N2 डिवाइडेड बाई D2 डिवाइडेड बाई M। जब भी तो गियर मैशिंग में आते तो मॉड्यूल सेम होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा N1D1 इज इक्वल टू N2D2। आप लोग ऐसा बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, NIDI ले रहे हैं और NEMDEM ले रहे हैं, तो क्या बनेगा आप लोग का NIDI इज इक्वल टू NEMDEM। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग को रेशियो फाइंड करना है DI ओपन DEM का, तो क्या होगा NEM ऊपर आ जाएगा और NI ऊपर आ जाएगा। NEM आप लोग को पता है गिवन डेटा में है, स्पीड आप लोग को दिया हुआ है 720 और NI आप लोगों ने अभी फाइंड किया 236, तो आप लोग का ये आंसर आ जाएगा 3.05। ओके, थैंक यू।